اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل على محمد وآل محمد والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
نتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول
यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुन्तुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सैहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम वहुम यक़िस्सिमून फला यस्ततिऊन तौसियतम वला इला अहलिहिम यरजिऊन वनुफ़िक़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमानु वस्सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून फ़ल्यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तअमलून इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फ़ी शुग़ूलिन फ़ाकिहून हुम वअज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वअनीबुदूनि हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफ़लम तकूनु ताक़िलून हाज़िहि जहन्नम अल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहा अल-यौम बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून वलौ नशाअ लतमस्ना अला अयूनिहिम फस्तबक़ुस्सिरात फ़अन्ना युबसिरून वलौ नशाअ लमसक़नाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुज़ीयन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला याक़िलून वमा अल्लमनाहु अश-शि'रा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुनज़िरा मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अवलम यरौ अन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फ़हुम लहा मालिकून व ज़ल्लल्नाहा लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून व लहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिब अफ़ला यशकुरून वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततिऊन नस्रहुम व हुम लहुम जुन्दुम मुहज़रून फला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा यु'लिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन
वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिया रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अनशअहा अव्वल मर्रह व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम निल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ा मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिहि मलकूत कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आप हज़रात से मारोज़ा है कि एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाकर मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी ख़ां मरहूम इब्ने मिर्ज़ा हबीबुल्लाह ख़ां मरहूम के लिए इरशाद फरमा दें। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। रंगी है खून से बो बला दूर दूर तक रंगी है खून से बो बला दूर दूर तक ख़ासिम को ले गई है ख़ज़ा दूर दूर तक रंगी है खून से वो बला दूर दूर तक गाज़ी कहाँ कहाँ से उठाए तुझे हुसैन गाज़ी कहाँ कहाँ से उठाए तुझे हुसैन बिखरा पड़ा गला शाह तेरा दूर दूर तक रंगी है खून से वो बला दूर दूर तक अकबर की लाश तक कभी असगर की लाश तक अकबर की लाश तक कभी असगर की लाश तक शबीर को नियों पे चला दूर दूर
कासिम को ले गई है क़ज़ा दूर दूर तक। गुने चदहल बेकार दुल्हा ऐसे में बदल बेकार दुल्हा मुझरे के लिए आए डो मुझरे के लिए आए नाशार दुल्हन बेकार दुनिया से नहीं ये शादी है दोनों ही तरफ बर्बाद है मुझे नाराज़ न हो मर्ज़ी है तुम्हारी क्या बोलो मैं हाथ में अब कंगना रखूं मैं हाथ में अब कंगना रखूं यारा खुरसान बेकार ये बेखबरी मुझसे कासिम चलते है मेरे पहुँचे कासिम
चारों तरफ तीर की बोझा जोश पर, दिल पर सीना का जख्म है, पहलू पदोश पर सिरे की सब कड़े में लड़िया तलवारन में दुला का मोको से दो दिया में गुलिया दुल्हन बेवा सरकार ने उधर से बड़े पहुँच के सवार दौड़े, इधर से जालम करके जुल्फ़िकार से साथ अकबरो अब्बास नामदार दहशत दे जरगे मजरूह ना दवा का अजब हाल हो गया, घोड़ों से जिस्म धोले का पामा वेदानी देखा जगो जो आते हुए दार खैमे के सैन से ये पुकारे बचा में तार सैदानियों रोते होशियारो बाखबर जोड़ी दगाए मदर न जा पाखों से है निडाल कदम लड़खड़ाते हैं मन्नत बेजा दुल्हन चपेड़ा हालत गम से गैर शेख कुछ किसाल की जवान कासिम यूसुफ जमाल की पोशाक से सुर्ख है, उसने हाल किया आओ बना देख लो जबर गला रोने का जो जरगबा जाता है साहिब दूल्हा चाचा की गोद में आता है दौड़े हरम उधर से कुले सरबरे नबा खैमे में आए लाश ले जाए करबला नामूद में क़यामत
कुबरा हुई बपा वाकाज मग जग बेने करीब आ गए आज तो बहाने को बनाया फैलाए मन अकल से लगा बेजाने बांधा कैमिका पर्दा बता मलाल लाई दुल्हन को थाम के बानो को साल मिट्टी भरे दिमाग में कुबरा का दाएं हाल मैले से चादर उड़े हुए गुना देख लागे जब जत दे बाज बाज के मिला दिया रोज बल मिला बेजाने लागे निमे रणताला रख दिया दूल्हा के माने हाथ में उसको डाल लिया और पुलिस को पहनो ये गलत बेवका कुबरा ने सर को पेट दिया रोके अब क्यों लिबास बेवका मुझको पिनाते हैं दुल्हन बना के क्या कोई बेवा बना मिसाल बद्र जो हासिल हुआ कमाल मुझे घटा घटा के सामने क्यों जाके हाथ फैलाऊं मेरा तेरी मदद का फखर भरोसा है किसी के हुसैन कहते थे पूछते फर्श से गिरता हूँ
हुसैन कहते थे परवरदिगार रहियो गवाह के गलत करते नरगा हुआ हुसैन पार जो फौज शाम का तीरों से जिस्म छन गया शाह अनाम का चिल्लाया नाम लेके लई खासवाम का ऐ मरा भाई ऐ मरा भाई आ मेरे रुस्माना अमादो हुसैन को नौका बबर्तियों के नौका बबर्तियों के उड़ा लो तुमी जोता शहदी पना की हसरत से सुए गंजे शहीदा निगाह की राकिब को जना ने देखा और आकी रोकर दर्द आलम की किसे तलबदाद कीजिए बोला वो बेज़बान कुछ इरशाद कीजिए शफ़क़त से हाथ घोड़े की गर्दन में डाल कर बोले हमें कुछ आँखों से आता नहीं नजर घोड़े तू चल के गंजे शहीदा में गौर कर आराम करते आराम करते अयास में वफा मेरे दिल को करार दे आशिक को चल के उनके बराबर उतार घोड़ा कदम कदम सुए मक्तल हुआ रवा यानी नशे के जिस्म को हो सदमे तका एक नौजवान की लाश पा ठहरा वो नागहा बोझों कर बैठा जो जुलझला के आप उतरे दीन से दो हाथ कांपते हुए निकले ज़मीन से दो हाथ कांपते हुए निकले ज़मीन से हाथों के साथ आई ये आवाज़ ना कहा है ये कहर ज़ख्मी गर्मियाँ लमा आकर संभालते नहीं अब्बास है कहा आओ हमारी गोद में आओ हमारी गोद में आओ मर कर भी हम जुदा नहीं
थे वारी तेरे पाने वाली के हाथ उन हाथों का मिला जो सहारा हुसैन को घोड़े ने बैठा नए दाजिना ने दौड़ के मारा हुसैन फिर तो रहा न जब फिर तो रहा न जलती जमी पर गज गई साथ पड़े रहे जल्लाद गिरद तेगों को खींचे खड़े लो मोमिनो लरस्ता है अब दश्त करबला लो शिमर दिभा करने को मजलूम के लो आचरिया लो आचरिया लेटे मोयना निकली मगर अब निकल पड़ी मुड़ा जैनब निकल मुड़ा बोए जैनब निकल पड़े अज़ीज़ान ग्रामी मुंतज़मीन मजलिस की आपसे ये गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा से ज़ाकिर अहले बैत डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद तकी खान साहिब इब्ने मिर्ज़ा हबीबुल्लाह खान साहिब की रूह को शाद फरमाए। जोश ईमानी के साथ एक नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मी अद्दाफ़ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील अबिल क़ासिम मुहम्मद वो अहल बैत ही तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वतहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम
ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सलवात। अज़ीज़ान ग्रामी, जब कभी मैंने आपको ईसाल सवाब की किसी मजलिस में खिताब किया है तो मैंने अपने तवील अरसे खिताबत में कभी मौत के उन्वान पर खिताब नहीं किया, इसलिए कि मौत आरिज़ होती है उन पर जिनके लिए लफ्ज़ ईमान का सर्फ नहीं होता। हालांकि शुअरा ने, मुफक्किरीन ने, फ़लसफ़ियों ने मौत की ये शरह की है कि जब क़ल्ब की हरकत बंद हो जाए, बदन सर्द हो जाए, आँखें पथरा जाएं, नफ्स थिरकना बंद कर दे तो उसको मौत कहते हैं। लेकिन कुरान का लबो लहजा ऐसा नहीं है। सूरह आल इमरान की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उनको मुर्दा गुमान भी ना करना, तुम्हारा जहन भी ना पहुँचे, तुम्हारा वहम भी ना पहुँचे, तुम्हारा ख्याल भी ना पहुँचे कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब से रिज़्क़ पा रहे हैं। इस मुख्तसर सी मजलिस में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर नज़र में बदन का साकित हो जाना मौत सही है, लेकिन मौत बदन पे आरिद होती ही नहीं है। मौत का ताल्लुक़ सिर्फ बदन से नहीं है, बल्कि मौत का ताल्लुक़ है नफ्स से। और एक जुमले में मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मौत है क्या। आपने बहुत सारी तला सवाब की मजलिसें सुनी होंगी, उलमा को सुना है, खुतबा को सुना है। मौत कुछ नहीं है, सिर्फ नफ्स के लिए एक जायक़े का नाम है। जिसका जैसा नफ्स है वैसा जायक़ा है। अगर किसी का नफ्स इतना लतीफ़ हो कि उसने अपने नफ्स को किसी ऐसी हस्ती के सुपुर्द किया हो जिसका नफ्स अब्दियत से मिले तो नफ्स मोहम्मद कहलाए, उलूहियत से मिले तो नफ्सुल्लाह कहलाए, तो फिर उसके बाद उसके नफ्स को मौत का फरिश्ता छूता नहीं है, बल्कि उसके नफ्स की मंजिलें यहाँ से गुजर के कुछ और हो जाती हैं। दो चार जुमलों में इसकी शरह यूँ समझ लीजिए कि नफ्स की हालतें बदलती हैं। नफ्स आपके बदन में पूरे वजूद में मौजूद है, पूरे वजूद में। रूह नहीं, रूह अमरे रब है। बदन की तख्लीक मिट्टी से बना, नुत्फ़े की मंजिल में आया, वहाँ से उठा, अलक़े की मंजिल में आया, वहाँ से उठा, मंजिलें तय करता हुआ विलादत तक के पहुँचा। रूह जब बदन पे अर्ज़ की जाती है तो जो चीज़ तकलीफ़ पाती है वो नफ्स है। जाहिर है कि मैं ज़रा सा मेरी तकरीर अदक हो रही है, मैं नई नस्ल के लिए इसको आसान करना चाहता हूँ कि अगर आपको सुई चुभोई जाए तो ये तकलीफ़ बदन को होती है या नफ्स को। अगर किसी का ये ख्याल है कि ये तकलीफ़ बदन को होती है तो मैं मादरत ख़्वाह हूँ, इसलिए कि ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर नफ्स को गाफिल करके सारे बदन को चीर के रख देता है सर्जरी में, उस वक्त तक तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसी तरीके से नफ्स को तकलीफ़ होती है, बदन को तकलीफ़ नहीं होती।
नफ्स मसूल है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सवाल और जवाब बदन से नहीं है क़यामत में। बदन से सवाल और जवाब क़यामत में नहीं है। ये नामुराद बदन जिसे हम सजाए सजाए फिरते हैं, ये तो क़यामत में गवाही देगा। हाथ गवाही देंगे क्या करके आया है, आंखें गवाही देंगी क्या देख के आया है, ज़बान गवाही देगी क्या कह के आया है, सीने गवाही देंगे कि किन मंजिलों से गुजर के आए। ये गवाहियां हैं बदन की। सवाल जवाब तो नफ्स से है, क्या लेके आया है, क्या छोड़ के आया है। और जिन लोगों ने अपने नफ्स को उस नफ्स को सुपुर्द किया है कि ये जाए या तो वो उस नफ्स की मंजिल में है कि जहाँ उसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं, तो फिर उसके बाद ना उसको यहाँ इस्तराब है, ना कब्र में इस्तराब है, ना क़यामत में इस्तराब है। एक सलवात इरशाद फरमाएं पर मोहम्मद। अगरचे कि आप लोग काफ़ी मजलिस से सुनने वाले लोग हैं और मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मगर इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ब्र में आमाल की पुरसिश नहीं होगी। जाहिर है कि मैं इस उम्र में कोई गैर ज़िम्मेदाराना खिताब तो नहीं कर सकता। ख़ब्र में आमाल की पुरसिश नहीं होगी। आमाल की पुरसिश है क़यामत में। ख़ब्र में पुरसिश है अक़ीदे की। ख़ब्र में आमाल की पुरसिश नहीं है, आमाल की पुरसिश है महशर में। ख़ब्र में पुरसिश है अक़ीदे की। अगर अक़ीदा दुरुस्त है तो क़यामत तक के लिए मोहलत है कि अगर कोई अमल छूट भी गया हो और उसके आने वाली नस्लों में कोई इस अमल को पूरा कर दे तो महशर तक के मोहलत मिल जाए। आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर पूरी जिंदगी आमाल से भरी हुई है और अक़ीदा दुरुस्त न हो, देखिए ख़ब्र एक गुज़रगाह है, ख़ब्र एक इंतहा नहीं है। ख़ब्र एक गुज़रगाह है। जैसे इंसान ज़िंदगी के बहुत सारे मराहिल तय करता हुआ है, कोई घबराने की जगह नहीं है। इसलिए कि ये जो आप आवाज़ें सुन रहे हैं, आजकल भी सुन रहे हैं और भी यह नारा आपने सुना है कि मुसलमानों में एक इत्तेहाद होना चाहिए, कौमों में इत्तेहाद होना चाहिए, रियासतों में इत्तेहाद होना चाहिए। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँ कि क्या मौत के वक्त बाप, भाई, औलाद, दोस्त, अहबाब, इनमें से कोई इत्तेहाद करके साथ आ सकता है? दबा के क़ब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। ये आपने कहाँ देखा है इत्तेहाद? कभी आपने ये इत्तेहाद का जो लफ्ज़ है तो आपने इत्तेहाद देखा कहाँ है? ना पैदाइश में इत्तेहाद है, ना बचपन में इत्तेहाद है, ना लड़कपन में इत्तेहाद है। क़ब्र की मंजिल तक आ गई, इंसान गुजर गया। कितने रिश्ते हमने जोड़े, कितने नाते हमने पाले, कितने अहबाब से हमने दोस्तियां की, कितने हम नशीनों के दरमियान से हो के हम गुजरे, कितनी दुनिया हमने गुजारी, कितने लोग हमको जानते हैं, कितने लोग हमको पहचानते हैं, कितने लोगों ने हमसे मोहब्बत का दावा किया है, लेकिन सब क़ब्र के किनारे तक आगे कोई इत्तेहाद नहीं करता। ठीक है, तो क्या मौत के वक्त कोई इत्तेहाद होता है कि इंसान मर रहा हो और लोगों ने मुत्तहिद होकर उसकी मौत को रोक लिया हो या उसकी मौत को उस मंजिल से सहार के गुजार दिया हो जहां वो आराम से गुजरने वाला है?
वहाँ भी क्या महशर में किसी ने इत्तेहाद किया है कि जब सवाल जवाब और पुरसिश के अजाब से गुजर रहा हो तो क्या सब मुत्तहिद होकर गवाही देंगे कि ये बड़ा नेक है? तो इत्तेहाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप गौर करें और मुझे बताएं कि इत्तेहाद कहाँ मिल सकता है। आपको इत्तेहाद कहीं नहीं मिले। क्या किसी ने वादा किया है? चाहने वालों में, अहबाब ने, दोस्तों में, रिश्तेदारों ने, अक़रबा में कोई वादा किया है कि मौत के वक्त बड़ी जांकनी का आलम होगा, रगें खींचने लगेंगी, दिल बैठा जाएगा, ऐसे मौके पे मैं आऊँगा? मैं कहाँ आपको पहुँचाना चाहता हूँ, मैं कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ आप? क्या किसी ने वादा किया मैं आऊँगा? किसी रईस ने, किसी शाह ने, किसी ऐसी हस्ती ने जिसका आप दम भरते रहे जिंदगी भर? किसी ने वादा किया? इल्ला उनके, ये दो हरफी लफ्ज है, इल्ला उनके जिनके हवाले आपने अपना नफ्स यूं किया था कि जैसे सब कुछ उसके हवाले कर दिया। वो एक ही वादा है, वो एक का ही वादा है, मैं आऊंगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मौत से घबराहट कैसी है, मौत से वहशत कैसी है, मौत से हिरासानी कैसी है, मौत से परेशानी कैसी है? मौत कोई ऐसी चीज नहीं जिससे इंसान को हौलनाकी हो। मौत तो उसके दीद की ईद है जी। यानी जिसको देखने का इंतजार आंखों को रहा हो, जिसकी दीद का इंतजार में जिंदगी गुजरी हो, एक एक लम्हा गिनते गिनते गुजरा हो, जिसको हर जरूरत में पुकारा हो। किसी ने और वादा किया था कि तुम मुझे पुकारो, मैं मदद करूंगा। हैं कुछ हस्तियां, हैं कुछ हस्तियां जिनको दिल बेसाख्ता पुकारता। बल्कि शायद मैं ये जुमला किसी तकरीर में कह चुका हूँ और शायद एक से ज़्यादा मर्तबा कह चुका हूँ, आदतन तो हम कभी नहीं पुकारते, ज़रूरतन तो हम बिल्कुल नहीं पुकारते, शायद हम फितरतन भी नहीं पुकारते हैं। हम पुकारते हैं जिबिल्लतन, इंस्टिंक्ट है हमारी। ये बात मैं मिसाल पहले बहुत दे चुका हूँ, लेकिन आज ज़रूरतन फिर आपसे अर्ज करूँ। जैसे परिंदे के बच्चे को कोई उड़ना नहीं सिखाता, जैसे मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, इसी तरीके से याली कहने के लिए इंस्टिंक्ट की ज़रूरत है, जिबिल्लत की ज़रूरत है, कुछ तहारत वालिदा की ज़रूरत है, कुछ ईमान क़ल्बी की ज़रूरत है। दक़ीक़ों में, आखिरी लम्हों में तकरीर को मुनक़लिब किया चाहता हूँ। उमूमन मेरा ये तरीक़ाकार नहीं है कि मैं मरने वाले के ताल्लुक़ से मिंबर पे तवील गुफ्तगू करूँ, ये मेरा तरीक़ाकार नहीं है। इसलिए कि इसाले सवाब की मजलिसों का मकसद ये होता है कि इल्म व मारिफत में इजाफ़ा हो और इसका सवाब आपको भी हो और मरने वाले को भी। ये तरीक़ा है। लेकिन निस्बतें फ़िक्र को घेरती हैं। निस्बत ये बड़ा अहम लफ्ज़ है। आपकी शनाख्त निस्बत से है। आप जो पहचाने जाते हैं निस्बतों की वजह से पहचाने जाते हैं। अगर आपसे निस्बतें टूट जाएं, निस्बतें अलग हो जाएं, तो फिर आपका कोई चेहरा ही नहीं है।
आपकी कोई शनाख्त नहीं है, आपकी कोई शनाख्ताई नहीं है। अगर आपकी रिलेटिविटी टूट जाए, रिलेटिविटी या निस्बतें बहुत अहम हैं। दुनिया में जिससे जिसको जितनी मोहब्बत रही है वो उसकी निस्बत का बास बनता है। ना दौलत निस्बत का बास बनती है, ना बागात बनते हैं, ना जायदाद बनते हैं, ना कोई माल व अमवाल बनते हैं। निस्बत ये फानी चीज़ों से हो तो आदमी फना होके रह जाता है। कैसे कैसे तख्तनशीनों को देखा, कैसे कैसे शहंशाहों को देखा, कैसे कैसे बादगुजारों को देखा, किससे कैसे हुक्मरानों को देखा। आज किसी को नाम याद नहीं है, लेकिन जब निस्बत उससे हो जाती है जिसके लिए इरशाद हुआ कि ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उनको मुर्दा न गुमान करना, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब से रिज़्क़ पा रहे हैं। तो जिसने अपनी जिंदगी का रिश्ता उनसे जोड़ा उनका भी तज़किरा बाकी रह गया, उसका जिक्र करने वालों का भी तज़किरा बाकी रह गया। बस इतनी सी रहमत मैं आपको देना चाहता था। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर इमाम तकी खान साहिब से शहर का तो मैं क्या कहूँ, तकरीबन दुनिया का हर पढ़ा लिखा इंसान जो इल्म का ज़ौक़ रखता है वो उनसे वाकिफ़ था, वो उनसे वाकिफ़ था। बेजा नहीं होगा कि अगर इस मौके पे मैं एक जुमला आपसे अर्ज़ करूं। देखिए, अभी जितना कुछ भी मैंने आपसे अर्ज़ किया है, मेरी तकरीर अभी मेरे वक्त के सांचे में ही है, मैं बाहर नहीं निकला। वो बहुत बहुत मशहूर शख्सियत थी, बहुत मशहूर। जहाँ तक मेरे हाफिज़े में है 70 से ज़्यादा तलबा को तो उन्होंने PhD करवाया, यानी उनके शागिर्द हैं। 70 से ज़्यादा तो डॉक्टर्स हैं जो उनके शागिर्द हैं। PhD कर लेना इतना आसान काम नहीं, वो भी केमिस्ट्री में, इल्म कीमिया में। और एक जुमला आपसे ये भी कहूँ कि कैसे निस्बतें बनती हैं। इल्म कीमिया को आम किया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जाबिर इब्न हय्यान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द रहा है। उसने इल्म कीमिया को वाज़ह किया और उसने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा उसने कि मैं कह रहा हूँ। ये आप उसको उसके किसी किताब में ये जुमला नहीं बता सकेंगे। जब कभी भी उसने लिखा क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम, फरमाया इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने अपने मज़लूमीन की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात। कभी आपको मिल जाए कहीं। अब तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेट पे बड़ी सहूलत हो गई है किताबों को तलाश करने की, और नई नस्ल तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट से इस्तेफ़ादा भी कर रही है। मैं इस किताब का हवाला दे रहा हूँ आपको, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इस्लाम, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा साइंसदान, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इस्लाम। कोई 450 सफ़े की किताब है। इसको उठा के देखिए, पहले जुमले से लेके आखिरी जुमले तक जितनी साइंसी इत्तलाहात हैं, जितने साइंसी उलूम हैं, ये सब के सब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की देन है, या इमाम बाकर की या इमाम सादिक।
मैं इसाले सवाब की मजलिस पढ़ रहा हूँ डॉक्टर इमाम तकी खान साहिब क़िबला की एक मजलिस का उनके मैं हवाला देते हुए उनकी मजलिस का एक टुकड़ा उठा रहा हूँ जो शायद मैंने 50 साल पहले सुनी है। और सरवर कायनात कमेटी की मजलिसें वो पढ़ रहे थे, उन मजलिसों में उन्होंने ये पढ़ा था। देखिए, थोड़ी मेरी जसारत को माफ़ कीजिए, मैं कसीदा खां नहीं हूँ किसी शख्सियत का, लेकिन जब वो सस्ती में ये खूबियाँ हों तो बयान किए बगैर चारा भी नहीं। मैं मौजूद था मजलिस में, कमाल अर्जन की ड्योढ़ी में ये मजलिसें हुआ करती थी जहाँ भौदतर मेहदी है, वहाँ मैं शरीक था। सरवर कायनात कमेटी थे तो ज़ाहिर है कि पैगम्बर अकरम के फ़ज़ाइल ही की जश्न थे, वो जश्न की महफिल थी जिसमें मैं ये वो तकरीर कर रहे थे और मैं मौजूद था। 3 दिन होता हुआ करते थे ये जश्न की महफिलें। उन्होंने यक बायक, देखिए आप, आलिम ये है, इल्म की कई सूरतें हैं। सरकार रिसालत ने फरमाया इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। तो भला बताइए चीन में कौन सा इल्म था? क्या कहना फजीलत इल्म देखिए। आज आप केमिस्ट के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दर्द में मुब्तला हो के जाते हैं, मरद में मुब्तला हो के जाते हैं। आप बताइए अगर केमिस्ट्री ना होती, इल्म कीमिया इमाम ने नहीं वाकिया होता तो आज बिलकती हुई इंसानियत अपनी दवा के लिए किसके दरवाजे पे जाती? अगर आज एक दिन के लिए दुनिया में फार्मासिस्ट की दुकानें बंद हो जाएं, केमिस्ट्री की वजह से जो दवाएं एलोपैथिक मिलती हों या कोई और मिलती हों, अगर बंद हो जाएं तो इंसानियत का क्या हाल हो जाएगा? एक दिन, सिर्फ एक दिन। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं, ये पूरी दवाएं दर्द के एहसास को मिटाने वाली हैं, दर्द को मिटाने वाली नहीं हैं। दर्द को मिटाने वाली तो वही एक दवा है जिसका नाम पुकारो और दर्द। आप 5-7 मिनट मुझे गवारा फरमा लें, मैं ज़्यादा अहमद का बास नहीं बनना चाहता। तो मैं उस मजलिस का और उस महफिल का तज़किरा कर रहा था। उन्होंने यकाएक मेराज पढ़नी शुरू की और कहा कि आइंस्टाइन ये कहता है कि कायनात की हर चीज़, मैं डॉक्टर तकी खां का बयान किया हुआ कुलिया अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, आइंस्टाइन ने यह कहा कि कायनात की हर चीज़ मादा है, मैटर है। सब पढ़े लिखे लड़के मौजूद हैं, नौजवान हैं, और मेरे अहबाब तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं उनसे क्या अर्ज करूँ। यानी मादे की तारीफ यह है जो वजन रखता है, जगह घेरता है, मुज़ाहमत करता है, ये मैटर है हर चीज़। आइंस्टाइन ने कहा जिस वजूद पर भी चीज़ का इतलाक हो वो मादा है, दैट इज़ अ मैटर। अब आइंस्टाइन का जुमला सुनिए, जब कभी, गौर से मुझे सुनिए, जब कभी कोई मादा गैर मादा में तब्दील होने की कोशिश करता है, whenever a matter tries to get itself converted into anti-matter, जब कभी कोई मादा गैर मादा में तब्दील होने की कोशिश करता है तो वो जल जाता है, शोला पोश हो जाता है, इट गेट्स इग्निटेड। ये डॉक्टर तकी खान साहब ने आइंस्टाइन की इस थियरी को बयान किया और उसके फ़ौरन बाद ये कहा, हुजूर की सवारी ज़मीन से मेराज में चली, फ़ज़ाओं से गुज़री, खलाओं से गुज़री, तमाम निज़ाम शमसी के इंतज़ाम व इंसराम का जायज़ा लेती हुई चली, देखती हुई नहीं गई। सब चीज़ तो उन्हीं के सदक़े में बनी थी। इंतज़ाम व इंसराम का जायज़ा लेती हुई चली और एक मरतबा जाके सिदरतुल मुंतहा पे रुकी।
जिब्राइल का साथ था। उन्होंने कहा कि जिब्राइल मादा मलकूती है, ये इत्तला उनकी सर्च की हुई है, यानी लाइटेस्ट पॉसिबल मैटर है, मादा मलकूती। किसी ने जिब्राइल को आते हुए नहीं देखा, उसके पाँव की आवाज़ नहीं सुनी, उसके बयान को नहीं सुना, इतना लतीफ़ मादा है, द लाइटेस्ट पॉसिबल मैटर। और जब सिदरतुल मुंतहा पे सवारी पहुंची, जिब्राइल ने कहा अब इसके आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। आइंस्टाइन ने कहा whenever a matter tries to get itself transferred into antimatter, जब कभी कोई मादा गैर मादा में तब्दील होने की कोशिश करता है तो शोलापोश हो जाता है। जिब्राइल ने कहा मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। नबी का साथ छूटा। अब ये जुमला है उनकी तकरीर का, खुदा उनके दर्जात आली करे, जवारे मासूमीन में जगह दे। उन्होंने फरमाया कि सरकार रिसालत के पैरों में नालैन थी, जूतियां थी, सरकार ने उतारना चाहा। और ये भी कहा था उन्होंने, इसलिए नहीं कि सरकार के इल्म में नहीं था, इसलिए कि इस जज्बे को, इस एहसास को, इस कैफियत को रहती दुनिया तक पहुंचना है। सरकार ने अपनी जूतियां उतारना चाहिए। मैं नहीं जानता कि नालैन किस चीज़ की बनी हुई थी, लकड़ी की थी, चमड़े की थी, गाय के चमड़े की थी या ऊँट के चमड़े की थी, उतारना चाहिए। आवाज़ आई नहीं मोहम्मद नालैन के साथ ही चले आओ। जिब्राइल का तो साथ छूटा, मगर इस दुनिया की बनी हुई नालैन का यह आलम था कि मोहम्मद के कदमों से लिपट जाने के बाद नालैन आगे बढ़ गई। मैंने कोशिश की कि उनके इसाले सवाब की एक सूरत मजलिस में निकल आए। ये है कैफियत, ये है नूर, ये है निस्बत का करिश्मा। उनसे वाबस्तगी के बाद चलते फिरते इंसानों को इंसान मत समझो। किसी को गुर्बत और फलाकत में देख के ये मत समझो कि गरीब है, पता नहीं उसका नफ्स किसके नफ्स के सुपुर्द है, खबर नहीं। उनके अकीदे का हर शख्स गवाह है और हर शख्स उनके नफ्स की मारिफत रखता है। जिसका खुद नफ्स आली है, जिसका नफ्स आली है, वही अली से मोहब्बत भी रखता है, अहले बैत से मवद्दत भी रखता है। मैं तवील मसाहिब तो नहीं पढ़ूंगा, तकरीर ख़त्म कर चुका। 7वीं मुहर्रम ये मजलिस मैं गुज़िश्ता पता नहीं मुझे कितनी क़दीम है, ये तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अब 80 से ज़्यादा साल से तो मैं देख रहा हूँ, 80 साल से तो मैं देख रहा हूँ। ये बात सुन लीजिए आप, शायद आपने सुनी हो, लेकिन मुझसे सुन लीजिए। जहाँ आदाखाना ज़हरा वाक़े है और जहाँ आदाखाना ज़हरा का आशूर खाना है, इस जगह मकान था ये जहाँ ये मजलिस होती थी। इस जगह 1908 में अब्बास साहब की मेहंदी इसको कहते थे, मशहूर अब्बास साहब की मेहंदी के नाम से थी ये। 1908 में 1908 में जब मूसा नदी में तुग़यानी आई तो ऐसी तुग़यानी आई कि सब कुछ बह गया। उसके हाई फ्लड लेवल स्टोन्स आज भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे जहाँ तक पानी आया था, सब बह गया। हत्ता ये कि अब्बास साहब का घर भी बह गया, सिवाय उस आशिक़ाने के हिस्से के जहाँ ये अलम, ये मैं आपको तारीख दे रहा हूँ। वो अलम फिर वहाँ से वहीं जामबाग में मुंतकिल हुए। मेरा बहुत बचपन था, मुझे इतना तो याद नहीं है कि वो मकान वहाँ कहाँ था, लेकिन वहाँ मजलिस होती रही। जहाँ जामबाग का ग्राउंड है उस जगह मजलिस होती रही। फिर उसके बाद से वो हबीबुल्लाह खान साहब के दौलत खाने में ये मजलिस मुंतकिल हुई। यहाँ जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, मैं समझता हूँ इन्होंने सब ने मजलिस को यहीं देखा है, यहीं ये मजलिस होती रही।
और इस मजलिस का आलम यह था कि मैंने इस मजलिस में किसी को फजाइल पढ़ते हुए नहीं देखा मिंबर से। कभी हमारे बुजुर्ग भी खिताब करते थे तो इसको यही कहते थे, कासिम के भूखे बराती हो, कासिम के प्यासे बराती हो। और कभी कभी मरसिए का सिर्फ एक बंद कि यारब दुल्हन बने मुझे गुजरी ना एक शब्द, दूल्हा जो मर गया तो मुझे क्या कहेंगे सब। अब तक तो शर्म से न हिलाए थे मैंने लब, पर क्या करूं कि अब है मेरी रूह पर ताप। शब्बर के आफताब का वक्त गुरूब है, दूल्हा से पहले मुझको उठा ले। हो चुकी मजलिस, मैंने आपको जहमत दी, मैंने आपको जहमत दी। एक जुमला अर्ज करूं, अज़ीज़ान ग्रामी, क्यों मौसम बहुत सख्त है ना, धूप बहुत जल रही है ना, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मौसम, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। लेकिन अगर ऐसी ही तड़प करकती हुई गर्मी में, ऐसी ही शिद्दत की गर्मी में कभी अगर आपने किसी फूल की पंखुड़ियों को जमीन पर बिखरता हुआ देखा हो तो वो कासिम का मातम करे, इसलिए कि कासिम की लाश यूं जमीन पे बिखरी। एक जुमला और मैं एक आध मर्तबा साल में ये मसाइब पढ़ता हूँ। आमतौर पर तो मैं इस मसाइब के हिस्से को कम ही बयान करता हूँ। वाक़या करबला के बाद शहजादी फातिमा कुबरा का तज़किरा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता मेरी शहजादी का तज़किरा। मेरे मोहताज मुताले में दो तीन जगह ये तज़किरा दिखाई दिया, उसमें से 2 जगह तो मैं पढ़ता हूँ और एक जगह मैं कभी नहीं पढ़ता, शायद मैं मरते दम तक ना पढ़ सकूँगा। वो एक तज़किरा तो मैं नहीं पढ़ता, मगर 2 तज़किरे मैं पढ़ता हूँ। एक तज़किरा तो ये है कि कासिम ने शहजादी ज़ैनब से चलते चलते ये कहा था, फूफी अम्मा आपसे एक वसीयत कर लिए। हाँ, ज़ैनब का कलेजा, अली अकबर की वसीयत, कासिम की वसीयत, अब्बास की वसीयत, एक तन्हा ज़ैनब। और ये कहा कि फूफी अम्मा सुनते हैं कि हमारे बाद बेरिदाई होगी, सरों तो चादरें छीनी जाएंगी, हुजूम होगा और शहजादियों को ले जाया जाएगा। फूफी अम्मा ऐसे में फातिमा कुबरा का ख्याल रख। रास्ते में गरीबों के काफिले को खुले सर देखकर कहीं से कुछ चादरें मैसर आईं तो ज़ैनब ने पहली चादर उठा के कासिम के सर को बतला के कहा, कासिम ये तेरी वसीयत थी ना, ले मैं तेरी दुल्हन को पहली चादर दे रही। आप रो चुके, मैं दामद दे चुका आपको, मगर एक जुमला और बस इसको तमाम करूं मैं। काफिला करबला आया, काफिला करबला पहुंचा वापस। एक एक बीबी एक एक खबर से लिपट गई। बीबी उम्मे कुलसूम अब्बास की खबर से लिपट गई, ज़ैनब भाई की खबर से लिपट गई। एक एक बीबी एक एक कब्र से लिपट गई, मगर एक बीबी थी जो तन्हा खड़ी हुई चादर में सिमटी थी। बड़ी एहतियात से करबला की जमीन पर कदम उठाती चली कि नहीं मालूम कहाँ मेरे दूल्हा की लाश के टुकड़े। मगर बीबी
बीबी रोई नहीं, रोई नहीं, फातिमा कुबरा रोई नहीं, बीबी ने रोई नहीं। कैसे रोती? गम को बयान करने के लिए किसी हमसिन की जरूरत होती। मैं कभी कभी यही तो आपसे गुजारिश करता हूँ, रोने वालों, जख्मों का तो मातम कर चुके, मसाइब का तो मातम कर चुके, कभी कभी उन आंसुओं का भी मातम कर लो जो आंसू आंख से बह नहीं सके, रोई नहीं। करबला से चली, मदीना पहुंची, आखिरी जुमला, इंतजार किया कि रात ढल जाए। एक रात जब रात ढल गई तो उठ के फातिमा सुगरा के हुजरे में पहुंची। बहन ने देखा बहन की आंखों में हसरतों का मातम है, तो बस इतना का बहन करबला में हमारी भी शादी हुई थी मगर बारात नहीं आई, अबा के दामन में दूल्हा की लाश। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। परवरदिगार इस जिक्र और इस इबादत को कबूल फरमा, मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का लुत्फ़ ख़ास मरहूम के नफ्स पर हो। परवरदिगार हमारा रिज़्क़ अगर आसमानों में है तो उसे ज़मीनों पे नादिल कर दे, जो ज़मीनों के अंदर है तो उसे बाहर निकाल दे, जो दूर है तो उसे करीब कर दे, जो करीब है तो उसे हमारे हाथों में पहुंचा दे। ज़ियारत एक सूरह फातिहा से जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तकी खान साहिब इब्ने मिर्ज़ा हबीबुल्लाह खान साहब की रूह को शाद फरमा। अल्लाह ताला फरजान, अल्लाह ताला मखरजान।